میک شور کریں, آپ اپنی فیملی سے سٹارٹ کریں کہ کوئی جس کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں, بیوہ ہے, نہیں مان سکتی ہے, تو اس کے لیے آپ ایکسٹرا چلیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلا ہوا ہے. اور آپ سوچیں ذرا اس کے کتنا بڑا اجر ہے. اور عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے قیام کرنے والے کی طرح ہے, کہ وہ شخص جو کسی بیوہ کی مدد کرنے نکلتا ہے نا, وہ ایسے ہے جیسے پوری قیام اللہ کی راہ میں پورے دن آپ سوچیں قیام کرنے کی طرح ہے, جو نہ تو وقفہ کرتا ہے اور نہ ہی تھکتا ہے. اللہ اکبر. اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ ہی نہیں چھوڑتا. کتنی بڑی بات ہے, اتنا بڑا ثواب ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جو رات بھر عبادت اور پورا دن روزہ رکھنے والے کے برابر ہے. تو اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا اجر. اور کوشش کریں, دیکھیں ضروری نہیں ہے, سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسوں سے نہیں مدد کر سکتے, تو آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کس طرح سے, آپ ان کی کون سی ضرورت ہے جو آپ ان کی کسی طرح سے بھی پوری کر سکتے ہیں. کسی کو کہہ کے آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کو کہہ کے بھی ہیلپ کراتے ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی اصل کئی توفیق عطا کر دے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی حدیث جب میں آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں, وہ صرف اس لیے کہ ریمائنڈر کہ ہمیں ایک دم سے یاد آ جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر رکے تو ہم دوبارہ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور کر لیں جی, آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں سورۃ ہود کی طرف. الحمدللہ آج ہم سورۃ ہود شروع کریں گے. اچھا, سورۃ ہود جو ہے نا یہ مکی دور کی سورہ, جیسے ہم نے سورہ یونس پڑھی تھی, سورۃ یونس کے بالکل اس کے فوراً بعد سورۃ ہود نازل ہوئی تھی. اور یہ دور کون سا تھا؟ مکی دور کا آخری دور تھا, جس میں ہم پہلے بھی سورہ یونس میں ہم نے اتنا پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا مشکل تھا وقت یہ, اور صحابہ پہ بھی اتنا ہی مشکل تھا. لیکن سورۃ ہود میں آپ کو لگے گا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر, کیسے شکر کرنا ہے, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان, ہر چیز کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس سے بڑھ کے حکم آپ کو ملیں گے, زیادہ بلکہ سخت جس کو کہنا چاہیے نا احکامات میں آپ کو وہ نظر آئیں گے. اور سورۃ ہود جو ہے نا, اس کا نام یوزلی آپ دیکھیں جو سورتوں کے نام ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نبی کے بارے میں ہی ساری سورت میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. ڈفرینٹ بات ہوتی ہے, لیکن سورۃ ہود میں کیونکہ ہود علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ آیا ہے, اور اسی ایک سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے عاد, اس کا ذکر کیا کہ یہ ان کی قوم تھی. تو اس لیے بھی تھوڑا سا ریلیٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ سورہ جو ہے اس کا نام شاید اس لیے رکھا گیا تھا. اچھا, دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک میں ایک دو بال سفید ان کو نظر آیا. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ آپ اب بوڑھے ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ابو بکر مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنیں, جس میں انہوں نے کہا سورۃ المرسلات, اما یتساءلون, سورۃ واقعہ اور اذا الشمس کوورت, پڑھ کے دیکھیے گا. یہ سورہ آنیسٹلی جان نکل جاتی ہے. اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت بہت پیاری ہے. تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں اس سورہ میں ایک اور میں چیز دیکھ رہی تھی کہ اس میں 1600 کلمات ہیں, اور اس میں جو حروف ہیں, دیکھیں ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ہیں, 10 نیکیاں مل جاتی ہیں نا, اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دے. تو اس کے اندر 7817 حروف ہیں, لیٹرز ہیں. تو اس سورت کا آغاز جو ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را. یہ حروف مقطعات ہیں, اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا کیا میننگ ہے, ہمیں نہیں پتا, کسی حدیث سے اس کا کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. اور ایک اس میں یہ مفسرین جو لکھتے ہیں اس کے بارے میں, ان کا یہ کہنا, دیکھیں بعض لوگ نا یہ سارے حروف مقطعات کٹھے ایک جگہ پہ لکھ کے کہتے ہیں جی اس سے برکت ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا اپنے پاس سے ہم لوگ بنا لیتے ہیں, کوئی حدیث میں ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ یہ کیوں ہے. لیکن ایک مفسرین کی ایک رائے ہے, کیونکہ آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ مشرکین مکہ تھے, یہود تھے, یا وہاں پہ عیسائی جو بھی تھے, کسی نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوشچن ہی نہیں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جو پہلے حروف مقطعات پہلے شروع میں آپ دیکھیں الف لام میم آیا تھا, یہ ایسے حروف مقطعات آتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس زمانے میں کلام کرنے کا جو طریقہ تھا نا, اس میں سے اس طرح سے تھا کہ شاید پہلے اسی طرح سے کلام کا آغاز ہوتا تھا, اس لیے کسی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ یہ کیا مطلب ہے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं। और दूसरा ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अलिफ लाम मीम के बारे में कि ये एक लफ्ज नहीं है, ये 3 हरूफ हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो हर हर्फ पे 10-10 नेकियां हैं। तो इसलिए भी तो प्यार आता है कि देखो सिर्फ अलिफ लाम रा पढ़ने से हमें 30 नेकियां मिल रही हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो इससे भी ज्यादा अता कर दे। तो अब शुरू करते हैं। किताबुन, एक किताब है। किताबुन ये कौन सी किताब है? कुरान पाक के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उहकिमत आयातुहु, कि पुख्ता की गई है आयातुहु, इसकी आयात। अल्लाह अकबर। देखिए उहकिमत को आप देखें कि अगर हम मुसलमान हैं, जैसे हम ये आयत पढ़ेंगे तो हमें तो यकीन ही है ना, हम तो कहते हैं हाँ ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इसकी पुख्ता आयात है, तो पुख्ता ही है आयात। लेकिन आप देखें कि ये कब नाजिल हो रही थी? मुश्रिकीन मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पेश कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की खुसूसियात बयान की, कुरान की सिफत बयान की, कि ये कुरान उनके सामने जब आप बयान करेंगे कि ये मैं क्या तुम्हारे सामने वही को लेके आ रहा हूँ, ये अल्लाह का पैगाम कैसा है पैगाम, तो उस तरह से आप देखिए कि जब आपने दावा किसी को देना है कि आप कुरान के बारे में कहते हैं कि देखो ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उहकिमत आयातुहु, इसकी आयात पुख्ता है। अब पुख्ता की आयात को कैसे हम इस देखें कि मुहकम आयात पुख्ता आयात का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एक इमारत लें, बनी होती है ना इमारत, एक होती है बड़ी स्ट्रांग, बड़ी ठोस इमारत बनी होती है, तो एक सुकून ये होता है कि इस इमारत में रहते हुए बंदा सर्दी गर्मी से बचेगा, कोई तूफान आता है, जैसे तेज बारिश आती है, आंधी आती है, वो उससे बचा देगी, बजाय इसके कि एक ऐसा घर है जो तेज बारिश भी होती है तो छत गिर जाती है या कुछ। तो एक पक्की इमारत होती है ना, पक्की इमारत के अंदर इंसान हर तरह की मुसीबतों से बच जाता है, और हर तरह की ये बाहर की मुसीबतें मैं आपको बता रही हूँ ना, उनसे बच जाता है। तो ये कुरान पाक जो है ये ऐसा, इसकी आयात पुख्ता है जो इंसान को इस तरह की प्रॉब्लम से बचा लेती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वो सुकून, उसको वो इत्मीनान, उसको वो राह दिखा देता, मखरज अल्लाह सुब्हानहू तआला निकाल देता है ना। अब देखिए नंबर 2 क्या, कि जब हम हमारी जिंदगी में क्या चीज होती है, एक अगर हम देखें एज अ मुसलमान, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला इकरार करते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जैसे ही हमें अल्लाह की पहचान होती है तो फिर हम कहते हैं कि हम यकीन रखते हैं, इस बात पे ईमान लाते हैं कि अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम तकदीर पे ईमान लाते हैं, रसूलों पे ईमान लाते हैं, किताबों पे ईमान लाते हैं, वो सारा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इस किताब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि द मोमेंट आप इकरार करते हो इस बात का कि तुम्हारा रब एक है, तो फिर तुमने इन सारी चीजों का इकरार करना है, तो हम मुसलमान हो जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद हमारे पास इल्म जब हम लेना शुरू करते हैं तो 2 तरह के, एक तो देखिए जाहिरी अमल, अब क्या है, हमने मुंह से तो कह दिया कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब सेकंड क्या होगा कि जैसे ही हमने कहा थोड़ी देर के बाद अजान होती है, फिर हमने नमाज पढ़नी, अब अमल आ गया, फौरन अमल आ जाता है। अमल कहां से हमें मिलेगा? वो भी इस कुरान से और सुन्नह से मिलेगा ना हमें। तो जब हम एक वो ये वाहिद किताब है जो आपको, जो जाहिरी हमारे अमल है, इसको फिक कहते हैं ना, फिक में हम देखते हैं कि अच्छा इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने कैसे नहीं करना, क्या हलाल क्या हराम, ये सारी चीजें हमें फिक में मिलती हैं। थर्ड चीज क्या होती है कि अब हमें ये भी मिल गया, इल्म भी हासिल हो गया, अब हमारा जो दिल है ना उसका भी एक सुकून है। अब हम कई दफा होता है कि काम कर रहे हैं, किसी को पता है कोई अमल मिले जुले अमल करते हैं, कभी दिल ऐसे हो जाता है कि परेशान है, समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जाहिरी तौर पे हम चीजें कर रहे हैं लेकिन अंदर से अभी तक हम मुतमईन नहीं हो रहे। ये वाहिद किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो दिल का भी चैन अता करता है, वो रूहानी तौर पे भी तुम्हें, क्योंकि रूह जो है ना वो नुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो यही फरमाया था ना कि अल्लाह ने फिर अपनी तरफ से उनके अंदर रूह फूकी थी, तो हम सबके अंदर वही रूह का हिस्सा है। तो सुकून जो रूह को मिलता है ना वो सिर्फ कायनात के रब के साथ जाके मिलता है। तो इस एक किताब में मुकम्मल हदायत है, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। तो कोई दुनिया की एक किताब ऐसी नहीं है जिसमें आपको आप कोई भी किताब ले लें, आप देखेंगे उसमें कि हाँ बड़ी अच्छी किताब थी, इतनी नसीहतें थी, लेकिन आपको जिंदगी के हर पहलू पे उसमें सबक नहीं मिलेगा। ये वाहिद किताब है जो आपको हर लेवल पे आके आपको वो गाइडेंस मिल जाती है कि अच्छा ये नहीं तो ऐसे करना है, ये नहीं तो ऐसे करना है, और रूहानी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी आपको सारी गाइडेंस मिलती है। तो अब ओके मत जो है ना इसको अपने अच्छे से याद कर लेना कि ये कौन सी किताब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसमें आयात जो है वो पुख्ता की गई है, और फिर पुख्ता करने के बाद उस रब ने क्या किया, सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन
अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको खोल खोल कर बयान कर दिया। जिसमें अक्सर ये कहती हूँ ना कि किधर छुपी हुई चीजें हैं, हमें क्यों ऐसे धोखे में शैतान ने डाल दिया कि नहीं समझ आनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसमें जो अहकामात है ना वो मुहकम है, और उन अहकामात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फुस्सिलत खोल खोल कर, आप देखिए एक ही किस्सा, हम आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पहले पारे से पढ़े हैं, हमने बनी इसराइल का किस्सा देखें, अभी हम 11वें पारे पे आ जाएंगे इंशाल्लाह आज, तो सॉरी 12वें पारे पे आ जाएंगे। तो वही आयात को अल्लाह सुब्हानहू तआला हर दफा एक डिफरेंट एंगल से हमें बताते हैं, हर दफा एक डिफरेंट उसके अंदर सबक हमें मिल रहा होता है कि अच्छा ये वाकया जब हुआ था तो उसमें ये चीज भी देखने वाली है, ये चीज भी देखने वाली है। तो फुस्सिलत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल कर बयान के मिल्लदुन किसकी तरफ से, हकीमिन खबीर, जो हिकमत वाला, जो बड़ी हिकमत वाला और खबीर, और उसको पता भी है, वो बाखबर भी है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ना, शिर्क इसी पे तो करते हैं लोग। सबसे पहले देखें जो शिर्क करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी और के पास जाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहला जो वो मोहर लगती है ना, वो इस बात पे लगती है कि जब आपको ये एहसास हो जाए कि ये बाबा जी जो है, या ये पीर साहब हैं, या जो भी बंदा है, ये जब मैं उसके पास गई थी उसको तो मैंने बताया ही नहीं कुछ भी, तो उसको सारा पता था कि मेरे साथ ये हुआ, उसने मुझे पूछा तेरे इतने बच्चे हैं, उसने मुझे पूछा तुम्हारे साथ ये हुआ था। वही हमारे यकीन के ऊपर ठा करके वो लग जाती है दूसरी तरफ की मोहर कि चलो जी अब काम मामला खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हमें ये यकीन हो जाता है कि इनको ये पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो अब ये ही इस वन जो मेरी मदद करेगा आगे मेरे अच्छाई और बुराई के लिए। तो शिर्क हो गया ना। अब आज की सबक में आप देखिए ये आयत जो है ना, एक एक आयत ऐसे है कि पूरे का पूरा दीन हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हुकूमत आयत की, जितना खोलते जाओगे ना आयत को उतनी आपको समझ आती जाएगी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ये फरमा रहे हैं कि वो हिकमत हकीम है। देखिए जो डॉक्टर है ना, अगर जो सब बेहतरीन डॉक्टर होता है उसको पता होता है कि उसके मरीज को क्या दवाई देनी है, उसने कैसे ठीक होना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयत ऐसी कि इंडिविजुअली हम में से हर कोई ये जरूर एक्सपीरियंस हुआ होगा, द मोमेंट हमने कुरान खोलते हैं ना, तो जो परेशानी थी, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आगे सामने आ जाता है, होता है ना। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ था, होता भी है कि जैसे शुरू में भी जब मैंने कहा ओह माय गॉड ये तो मैं सोच रही थी कि इसका मैं सवाल कैसे पूछूं, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बता दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंडिविजुअली इलाज करते हैं कि देखो ये काम है तो इस तरह से कर लो, इस तरह से। वो हकीम है और फिर वो खबीर भी है, वो बखबर है तुम्हारे से कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या खुशी है, तुम क्या चाहते हो, तुम सवाल क्या कर रहे हो, खबीर है। देखिए जब हमें ये यकीन हो जाएगा ना कि मेरा रब जो है वो मेरा हकीम भी है और वो मेरा खबीर भी है, ये दो चीजें अगर हमारे अंदर पुख्ता हो जाएंगी ना, तो बहुत सी चीजें हमें सुकून दे देंगी कि वो नहीं जानता। अल्लाह यालमु मन खलक, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि क्या जिसने तुम्हें पैदा किया वही नहीं क्या जानेगा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे रहते हो। आगे आगे आयत आएंगी, बड़ी प्यारी आयत है सूरह की। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये किताब नाजिल करने का मकसद क्या था। मकसद क्या था? अल्लाह के ना ताबुदू, तुम इबादत करो इल्लल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह की। मकसद है इस कुरान पाक का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार इधर के किस्से, वो कहानियां, वो बात सारी समझा के मकसद क्या है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। अब मेरे और आप में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल गया, काफी चीजों की समझ आ गई, तो हमें ये समझ आती है कि हाँ शिर्क नहीं करना और अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कहा। अब वो लोग जिनकी जिंदगी में कुरान नहीं खुला, अब वो कोई इतने ज्यादा बिलीव भी नहीं कर रहे हैं कि वो, उनको ये बिलीव है कि ये अल्लाह की किताब है, लेकिन उनको क्वेश्चन जो करते हैं ना, यूजुअली बच्चे आप देखें जब उनकी मतलब अभी नए नए समझना शुरू हो रहे होते हैं, तो वो ये क्वेश्चन कई दफा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों चाहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। तो यूजुअली माओ को समझ नहीं आती ना, तो गुस्सा सा आ जाता है कि क्या मतलब है, इतनी इस बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम इससे आगे सोचना ही नहीं चाहते, है ना। तो फिर बच्चों को भी नहीं तसल्ली देते। फिर बच्चों को अगर मैं तसल्ली नहीं फॉर एग्जांपल दूंगी ना, तो बच्चा वो क्वेश्चन किसी और से जाके पूछेगा, और अगर उसने अपने दोस्त से पूछ लिया और उसने उसका कोई और मतलब बता दिया तो फिर तो छुट्टी होगी, फिर आप करोड़ दफा उसको दूसरे एंगल से समझाओ, वो बच्चा कोई वापस नहीं आता। तो इसलिए हमें ये चीजों को अच्छे से समझ होनी चाहिए कि मेरा रब क्यों ये कहता है कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, मेरे सिवा किसी के आगे ना झुको,
ये मेरे लिए कहते हैं, क्योंकि देखिए वो एक सजदा जिसे तू गराज समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये समझ ली इस बात को अच्छे से कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है कि हम किसी और के सामने ना झुके। मीन्स एक हम लिटरली मतलब लेते हैं ना कि अच्छा वो जो सजदा करते हैं, ऑफ कोर्स वो गुनाह है, वो नहीं कर सकते, वो सजदा अपनी जगह पे है। इस एक पॉइंट को आज आपने समझना है कि देखिए जब हमारी जरूरतें ऐसी होती हैं कि हमने फॉर एग्जांपल बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, हमें पता है कि फला बाबा जी के पास चले जाओ तो वो करेंगे, और वहां पे जाके आप उनको इस तरह से उनके सामने बैठ जाती हैं और इस तरह से जो कराना चाहेंगी आप उस तरह से करके आप उस जो इस्लाम में जिसका इजाजत नहीं है आप उस तरह के काम कर रहती हैं जाके कि नहीं जी यही करेंगे। आपको यकीन हो जाता है कि ये बाबा जी जो है ना यही मुझे औलाद दे सकते हैं। अब सोचे कि उस इंसान, अब ये एक बाबा जी की कहानी, अब दूसरी तरफ जरा थोड़ा ऊपर लेवल पे आ जाए। आपको जॉब का मसला है, आपको पता है कि आपने पढ़ भी लिया है, जॉब नहीं, तो आपको पता है कि ये फलां बंदा जो है ना मेरे मोहल्ले का वो ऐसा है जो मेरी शायद हेल्प कर सकता है। उसके पास आप जाते हैं मदद लेने के लिए, आप कहते हैं जी मेरी सिफारिश कर दें, आप इस तरह से होगा। वो बंदा कहता है जी ठीक है मैं देखूंगा इस तरह से। आप फिर उसके साथ मिन्नतें करते हैं, आप कर ले, आप ऐसे वाली। आप सोचिए कि उस तरह से करने के बाद आप उसके सामने कभी उस इज्जत से खड़े हो सकेंगे? क्योंकि वो एक डिफरेंस आ जाता है ना कि इसको मैंने अपनी जरूरत के वक्त पुकारा था और जरूरत भी के लिए भी इतना गिड़गड़ाया था कि वो उसके सामने फिर ऐसे नहीं आ सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सबको बराबर पैदा किया है ना, हमारा लेवल क्या है एक दूसरे के लिए, वो तो हमने दुनिया में वो लेवल बना दिया ना। अमीर है तो उसके साथ इज्जत से बात करो, तो गरीब है तो बेचारा चलो जी तुम ये कर लो। हमारा जो लेवल है, मुसलमान का जो लेवल है, आप नमाज में देखें जब सफ में खड़े होते हैं, दैट इज द एक्चुअली मैसेज। वो तकवा के लेवल पे कि जिसका तकवा ज्यादा है वो ऊंचा है, जिसका तकवा कम है वो नीचा है, जो गुनाहगार है वो नीचे है, जो ईमान वाला है वो ऊपर है। दैट इज अ लेवल। लेकिन हमें समझ नहीं आती ना इस बात की। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार जो समझाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, किसी के आगे झुको नहीं। देखिए मदद मांगना बुरी बात नहीं है। हम जितने लोग हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असबाब के साथ दुनिया बनाई है। हम कह सकते हैं, दुआ के लिए भी कहते हैं, मदद के लिए भी कहते हैं, लेकिन आप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि जब आप किसी के सामने झुकी जाते हो कि अगर इसने ना किया तो बस मेरी तो अगली सांस भी नहीं निकलनी, तो मैं तो शायद भूखा ही मर जाऊंगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो मेरी बीवी का क्या होगा, तो मेरा ये क्या बनेगा। हर चीज में आप ये देखें कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कहते हैं तो द रीजन इज कि मेरा बंदा किसी के आगे झुके ना, मेरा बंदा किसी के सामने जलील ना हो, मेरा बंदा अपने दूसरी तरह अपनी ही तरह के बंदे के सामने ये गलत फहमी उसको हो जाए शायद ये मेरा काम कर सकता है, जबकि करने वाला अल्लाह की जात है। बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, दिन में 100 दफा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हें रास्ते खोजे। जो हम तस्वीर पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इसलिए नहीं कि अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, इसलिए कि तुम अपने आप को याद करवाओ कि मत किसी के आगे इतने जलील होना। अल्लाह है तुम्हारी सुनने वाला, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मुदब्बिर है, वो तुमको अता करेगा। झुकना सिर्फ उसके सामने है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करेगा कि इसी तरह से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक लफ्ज को समझने की कोशिश करेंगे अपनी वुसअत के मुताबिक इंशाअल्लाह। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया था कि आप अब जाके क्या कहें उनको कि इन्ननी, बेशक मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनहू, उसकी तरफ से। किसकी तरफ से? बेशक मैं अल्लाह की तरफ से, नज़ीरुन व बशीर, नज़ीरुन व बशीर, कि मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए डराने वाला, आगाह करने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। अब यहां पे जरा आप नज़ीर को भी ना अंडरलाइन करें, गोलदारा बना दे इसके, क्योंकि अक्सर लोग आपको, अब क्योंकि आप दाइए दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अक्सर लोग आपको पता है क्या कहेंगे, सारा वह डराती रहती है और तो इसको कोई काम नहीं है। तो अब ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया था कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों रसूल बना के भेजा, ताकि आप उनको आगाह करें, उनको डराएं और उनको खुशखबरियां दें। अब देखिए डराना, आप इसको आज अच्छे से नजीर को भी समझ लें। क्या शेर को देख के आप उसमें ये लफ्ज लगा सकते हैं कि शेर जो है ना इसको देख के मुझे तो नजीर वाला वो वाला डर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो हुआ? नहीं कह सकते ना। ये पता है कौन सा डर होता है? जो एक माँ अपने बच्चे से जब वो देखती है कि वो कोई गलत काम कर रहा है तो मोहब्बत से आगे बढ़ के उसको कहती है बेटा ना करिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने सर्दियां हैं, आजकल आग जलाई हुई है और बच्चा छोटा है, कॉल करते करते वो आग के पास जाता है, खींच के उसको पीछे लाते हो कि मत हाथ ना कि उसका जल जाए,
फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हो बच्चा फिर उधर जा रहा है, फिर खींच के वापस लाते हो, फिर उसको डांटते हो बकायदा कि बेटा नहीं करो, डोंट डू दिस, ओके। तो फिर आप देखते हो कि फिर वो जा रहा है, तो कई दफा आप माँ को होता है कि गुस्से से थप्पड़ मारती है कि क्या है, समझ नहीं आ रही, डोंट टच दिस, आप हर्ट हो गए इससे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही नजीर वाली बात करते हैं कि इंसान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत से कैसे मोहब्बत करते थे, नॉट ओनली उम्मत से, तमाम इंसानियत से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही गम था कि लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को नहीं समझ रहे हैं। तो जब उनको ये बात का अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको डराओ इस बात से कि आखिरत में उनके साथ जो अगर नहीं मानते, अगर वो गलत काम करेंगे, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलीव ना करना, वो उस तरह से अमल ना करना जुल्म है, और जुल्म शिर्क है। आगे जाके इसको आप जितना वो कहते हैं ना, जैसे प्याज है फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर खोलो, एक खोलो, एक खोलो, वल्लाही अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के भी ना ऐसे पत्थर खुलते जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये फरमाया कि उनको डराओ इस बात से कि ये गलत काम ना करे, ये जुल्म ना करे, क्योंकि लोगों के ऊपर जुल्म करना भी शिर्क में आ जाता है, और ये उनको आखिर में उसकी सजा मिलेगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए तो नहीं तुम्हें पैदा किया ना कि तुम दोज़ख में जाओ, अल्लाह ना करे, या तुम्हें उसकी सजा मिले। और खुशखबरियां दो उन लोगों को जो नेक काम करे। अब देखिए आपके 2 बच्चे हैं, अब ये सोचिए कि आप किसको नजीर के वाली चीज कहोगे, किसको आप डराओगे, आगाह करोगे, डांटोगे, किसको आप प्यार से बताओगे, आपको सब पता है ना। बिल्कुल वही फॉर्मूला अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि जो बच्चा बात नहीं मान रहा उसको आप डांट के भी समझाएंगे, प्यार से भी समझा, प्यार से भी डांट नहीं होता ना कि बेटा कितनी दफा समझाया। और जो बच्चा ऑलरेडी कोई गलत काम नहीं कर रहा, आपका अच्छा बच्चा, उसको आप थोड़ी डांटोगे, आप उसको ये कहोगे वेरी गुड, माशाल्लाह बेटा आपने, यू डिड अ ग्रेट जॉब, ऐसे ही कहोगे ना। यही नजीर और बशीर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नजीर और शबीर कह रही हूँ, अल्लाह अकबर। मुझे इससे ये बात याद आ गई कि जब मेरे बड़े वाले बच्चे ना, दे आर ट्विंस, तो उस जमाने में अभी कुरान तो ऐसे वाला नहीं खुला था जिंदगी में, तो दोनों ट्विंस भी थे, घर का काम भी, क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं ना अमेरिका में, उनके साथ बड़ी बुरी होती है, नौकर भी वही होते हैं, खनसामा भी वही होते हैं, सारा कुछ वही होता है। तो जल्दी जल्दी आदत थी कि जैसे किचन में जाके खाना पका रहे होते थे, तो किचन के सामने लिविंग रूम, यूजुअली यहाँ पे घरों का ये होता है कि किचन है और ओपन लिविंग रूम नजर आ रहा होता है। पाकिस्तान में तो बड़ी अय्याशी अपनी मर्जी के घर बना लेते हैं। तो जैसे मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही होती थी ना, तो दोनों बच्चे जो है वो मेरा ख्याल है 3 साल के होंगे, तो अक्सर ये होता था कि मैं साथ साथ देख रही हूँ उनको, साथ साथ खाना पका रही हूँ, तो कोई डेकोरेशन पीस होता था ना, तो वो उसको खेलते खेलते डर लगता था कोई टॉय फेंक रहे हैं या एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो मैं वहां से बैठी कर रही थी, अहमद उस्मान डोंट डू दिस, बेटा मैं हड्डियां तोड़ दूंगी। एक आदत थी। अच्छा मजे की बात है कि उनको कोई डर कोई नहीं होता, हड्डियां तोड़ दूंगी, वो इतना सुनते थे ना कि मत करो हड्डियां तोड़ दूंगी। तो एक दफा हमारे घर में कोई गेस्ट आए, मेरे हस्बैंड जाके वो भी तैयार हो रहे थे, उन्होंने कहीं जाना था, तो वो जल्दी तैयार होके जैसे बाहर आके, तो लिविंग रूम क्योंकि सामने ही था, तो उधर वो खड़े हुए, तो अभी क्योंकि इंतजार कर रहे थे, फारिग थे, तो चलते इधर से उधर चल रहे थे, तो उन्होंने एक डेकोरेशन पीस उठा के उसको देखना शुरू किया। तो जैसे उन्होंने पकड़ा ना, तो मेरा एक वाला ट्विन जो है वो कहते अंकल डोंट टच दिस, मेरी मामा आपकी हड्डियां तोड़ देगी। अल्लाह अकबर, आई वाज सो मच शर्मिंदा। फिर मैंने उनको बताया कि आई एम रियली सॉरी, वो असल में मेरी वो ये तंग करते होते ना, तो इसलिए ऐसे कहते। तो ये नजीर वाला जो चक्कर है ना, ये आप देख लें, मैं इसलिए मुझे एकदम से हंसी हूं, तो वो भी चीज याद आ गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे रहम करे, आमीन सुमा आमीन। तो अब यहाँ पे आपको समझ आई ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नजीर क्यों कहते हैं। जब हम किसी को बताते हैं कोई चीज, तो ये मकसद नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो इसी इंतजार में है कि तुम्हें सजा दें, तुम छोटी सी गलती करो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग में फेंकेंगे, ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे को ये बताते हो कि ये देखो ये चीज करने से ये नुकसान होगा, तो ना करो। अच्छा जी, अब आयत नंबर 3 सूरत हुद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बड़ी प्यारी आया है। और पता है ये इस्तगफार के बारे में तो मैं कहती हूँ कि सदियां बोलते रहो ना तो कम ना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वइनिस्तगफिरू, और ये कि तुम बख्शिश मांगो। और अब ये क्या करना है कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि नजीर हो रसूल अल्लाह को, कि मैं बताओ कि आपका काम क्या है, आपका मकसद क्या है, कि लोगों को खुशखबरी देना और लोगों को आगाह करना। और आगाह किस चीज से करना है, वइनिस्तगफिरू, कि तुम बख्शिश मांगो रब्बकुम, अपने रब से, सुम्मा तूबू, फिर उसकी तरफ तौबा करो, सुम्मा तूबू, फिर तौबा करो, अलैहि, तरफ उसके। अल्लाह अकबर कि इस्तगफार। अब देखिए हम इस्तगफार जब करते हैं ना, यूजुअली हम पढ़ते हैं, और आप में से अक्सर ये लोग कहते हैं हाँ हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तगफार की तस्बीह करते हैं, रोज पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मैं दिन में 70 बार, और बाज हदीस में आता है कि 100 मरतबा इस्तगफार करता हूँ।
तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे ना, उनसे तो कोई ऐसा गुनाह नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस्तिगफार का हक अदा करें। अच्छा, इस्तिगफार जो होता है ना, ये पिछले गुनाह जो हमने किए होते हैं उसका होता है, और तौबा क्या होता है कि या पाक परवरदिगार मुझे माफ कर दे जो मुझसे गुनाह हुए, और मैं तौबा करती हूँ उन गुनाहों से ताकि मैं आगे गुनाह ना कर सकूं। तो हजरत अली ने किसी ने पूछा उनसे, उस वक्त मुशरिकीन मक्का उनसे क्वेश्चन पूछते थे कि अच्छा ये कहते हो अजाब आ जाए, अजाब आ जाए, तो उनको भी पूछा किसी ने कि क्यों नहीं फिर अजाब आता, तुम लोग इस तरह से इस्लाम में कहते हो। तो क्योंकि सूरत इनाम में ये आया नाजिल हो चुकी थी, सूरत अनफाल में ये आया नाजिल हो चुकी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि अजाब इन पे नहीं आ सकता क्योंकि इनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो अजाब ना आने की एक मतलब उनकी अमान, मतलब उनके ऊपर अजाब नहीं आ रहा, तो एक वजह क्या थी कि उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एंड सेकंड वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई थी कि वो इस्तिगफार करते हैं। अब ये देखिए मुशरिकीन मक्का का, तो मैं कहती हूँ कि जब हम नई हिस्ट्री जानते तो हमें ये लगता है कि अच्छा वो ऐसे थे, वो तवाफ भी करते थे, वो हाजियों को खाना भी खिलाते थे, चाबी भी उनके पास थी खाना काबा की, वो ये सारे काम कर रहे होते थे और वो इस्तिगफार भी करते थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से। लेकिन वो बुतों की पूजा करते थे। बुत कौन से उन्होंने रखे हुए थे? शुरू से बुत नहीं थे वो। एक उसका क्या नाम था? अमर बिन लुई। हाँ, अमर बिन लुई, ये पहला वो नेक बंदा था जो उनका जैसे हम समझ लें कि बहुत बड़े इमाम मस्जिद के या फिर नेक जैसे होते हैं, वो एक लेके आया था। ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई हुई है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनमें अगली नस्ल आती जाती है और वो फिर और उससे ज्यादा खराबियां करते जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो क्या कहते थे, सॉरी, कि उनको वसीला बनाते थे कि ये वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे ना, तो वो कहते थे ये अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। ये बस चक्कर था सारे का सारा, जिसकी वजह से वो इस पैगाम को नहीं लेते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक रब की इबादत कैसे कर ले, क्या मतलब इनको सबको छोड़ दे। तो हजरत अली ने फरमाया था कि दुनिया में अल्लाह के अजाब से बचने के लिए दो तरह के ईमान थे, उनमें से एक ईमान उठ गया है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी, और दूसरा ईमान जो इस्तिगफार है, इसे मजबूती से थाम लो क्योंकि जब तक तुम इस्तिगफार करते रहोगे तुम पे अजाब नहीं आएगा। अब ये तो कौन की बात है? अब देखिए, हम इंडिविजुअली देखें, मेरी जिंदगी पे जब तक मैं इस्तिगफार करती रहूंगी ना, मेरे ऊपर अल्लाह की मुश्किलें, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें नहीं आएंगी। बेसिकली यही समझ आती है ना बात की। तो अब इस्तिगफार को आप जरा समझिए कि देखिए, मैं आपके सामने दो वाकयात रखती हूँ, आपको उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इस्तिगफार क्या है। एक तो आपने वो सुना होगा कि तौबतुन नसूह, ये अक्सर हम भी लफ्ज सुनते हैं जब हम तफसीर पढ़ते हैं कि तौबतुन नसूह की क्या है। तो ये असल में वाकया एक आता है, बनी इसराइल का एक शख्स था, उसका नाम नसूह था। अब यहाँ पे आपने इस पूरी कहानी से ना सबक लेना है कि तौबा करने का, इस्तिगफार का मकसद क्या है और हमें इस्तिगफार कैसे करनी चाहिए और तौबा कैसे करनी चाहिए, ये मकसद है। अच्छा, ये नसूह जो आदमी था ना, इसकी शक्ल औरतों से मिलती थी, जैसे बाज आदमी होते हैं ना फेमिनिन से होते हैं, और उसकी दाढ़ी वगैरह जैसे बाल नहीं थे, तो उसने, और आवाज भी उसकी बारीक थी, तो उसने उससे फायदा उठाया और उसने क्या किया कि औरतों को नहलाने का काम करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल की बात बता रही हूँ। अच्छा, वो करते करते किसी को पता ही नहीं था कि ये आदमी है, वो तो औरत बन के कर रहा था और वो गलत तरह से अपने आप को तस्कीन दे रहा था। वहां से फिर उसने एक हमाम में मसाज करने वाली औरत का काम शुरू कर दिया और वो इस तरह से अपने आप को गलत तरीके से अपने आप को तस्कीन दे रहा था। अच्छा, कई दफा उसको ये लगता था कि वो गलत काम है, वो तौबा भी कर लेता था कि ये गलत काम है, लेकिन फिर अपनी जो क्या कहते हैं नफ्स की खराबी की वजह से ना उसको फिर वो उसमें मुलव्वस हो जाता था, फिर दोबारा से वो वैसे काम करना शुरू कर देता था। एक दफा क्या हुआ कि उनके उस हमाम में एक बादशाह की जो बेटी है वो आई, तो मसाज कर वाली औरत उनको मसाज कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब वो उठी आवाज से, तो उसने एकदम से ये कहना शुरू किया कि मेरा एक पर्ल था जो बहुत कीमती था, वो मेरा पर्ल कहीं गुम हो गया, अब हर जगह पर्ल ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। तो जो शहजादी थी उसके साथ जो उसकी खादमाएं आई हुई थी, उन्होंने कहा कि सबकी तलाशी लो जो यहाँ पे थे, तो पर्ल मिल जाएगा। और सबकी तलाशी शुरू हुई। ये नसूह जो था, इसको एकदम से ये डर लगा कि ये तो अगर मेरी तलाशी ली तो मेरी तो असलियत खुल जाएगी, तो फिर मेरा क्या बनेगा।
ये डर के मारे छुप गया कहीं पे। अब वो सारे ढूंढ रहे हैं उसको कि नसू किधर है, नसू किधर है। तो उसको ढूंढते ढूंढते जैसे वो उसके पास गए, अब यहाँ पे देखिए नसू जहां पे छुपा, वहां पे जाके इसने इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगी कि या पाक परवरदिगार, वो जो भी उसकी जुबान में उसने कहा या अल्लाह या जो भी कहता होगा कि मुझे माफ कर दे, मेरे एक दफा मेरी इस गलती को माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं और मैं कभी भी ये काम वापस नहीं करूंगा और मैं अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में लगा दूंगा। अल्लाह मुझे आज एक दफा माफ कर दे, एक दफा। पता नहीं मैं कहती हूँ क्या दुआ किस दिल से उसने मांगी होगी। कहते जैसी ना वो औरतें पास उसके जाती हैं उसकी तलाशी लेने के लिए, तो अचानक पीछे से आवाज आती है कि पर्ल मिल गया है। अब जिसकी भी तलाशी नहीं ली गई है तो वहां पे अब रोक दो, मतलब पर्ल मिल गया। अब इसने अपनी कानों से सुन भी लिया था, देखा भी था, एक बहुत बड़ा मुआवजा था उसके लिए। तो उसने फिर क्या किया, जैसे वो वापस आता है तो आके उसने, क्योंकि तौबा की थी, अब वो अपनी तौबा पे जम गया। उसने कहा कि अब मैंने गलत काम नहीं करना। आप यहाँ पे ये भी देखिएगा कि गलत काम भी कोई छोटा गलत काम नहीं था, कितना बड़ा गलत काम था जिसमें उसने 2 दफा पहले बीच में तौबा भी की हुई थी, फिर वापस पलटा हुआ था। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उसके, अब हमारे पास कोई आता है ना जिसको हम जाहिरी तौर पे देखते हैं कि वो बड़ा गलत बंदा है, और जब वो आके हमें ये कह देता है कि मैं माफी मांगता हूं या कुछ भी, तो हम कहते हैं नहीं, इस बात की तो माफी हो ही नहीं सकती है। हम कितने बड़े वो बन जाते हैं ना, क्या कहना चाहिए वर्ड के, हम भी खुदाई बन जाते हैं उनके सामने कि बस ठीक है हमने नहीं ये करना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत देखे, अल्लाह ने उसको उस मुकाम पे किस तरह से बचा लिया। अब ये जब बाहर आया तो उसने ये काम छोड़ दिया। अब वो औरतें जो जिसको आदत थी उसको ढूंढते थे, मतलब उसको पैगाम भेजते थे कि तुम आओ, वो तुम्हारी वो कस्टमर आई हुई है। अब ये बहाने करता था, कभी मेरे हाथ में दर्द है, कभी कुछ कह के। इसको ये एहसास हो गया कि अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मैं तो इस तरह से काम से मैं कैसे बचूंगा। तो इसने क्या किया कि ये एक पहाड़ी के ऊपर जाके इसने अपना डेरा बसा लिया और वहां पर जाके अल्लाह की इबादत भी करता था। तो इसने ये काम छोड़ दिया। अब अचानक इसने देखा कि इसको एक गाय नजर आई, तो उसने वो देखा, इधर उधर सारा ढूंढा, उसको कोई बंदा नहीं मिला। तो उसने सोचा पता नहीं अब किसकी गाय है, चलो जब इसका मालिक आएगा तब मैं उसको ये लौटा दूंगा। उतनी देर उसने गाय अपने पास रखी। अब क्या हुआ कि काफिला वहां से गुजरा, काफिले जो था वो सख्त प्यासा था और पानी था नहीं। तो उन्होंने जैसे ही इसको नसू को देखा तो उसको इससे रिक्वेस्ट किया कि हम बहुत प्यासे, हमें पानी पिला दो। तो इसने गाय का दूध जो था, जो भी इसके पास में जमा था, इसने वो दूध उनको सेर होके पिला दिया। और फिर उन्होंने पूछा रास्ता, तो इसने रास्ता भी बताया उनको कि इधर से जाओगे तो इस तरह से ये रास्ता है। वो बड़े खुश हुए। उनके पास जो माल था उसमें से उन्होंने काफी माल जो है इनाम के तौर पर नसू को दे दिया। अब नसू ने क्या किया कि वो जो माल उसको मिला था उसने सारा माल बेच के, तो जो पैसे मिले उससे कुआं खुदवाया, क्योंकि उसको पता था यहाँ से काफिले गुजरते हैं, उनको प्यास लगती है। अब जब काफिले वहां से गुजरते थे वो पानी भी पीते थे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कुछ लोग वहां पे आबाद भी होना शुरू हो गए। पानी जहाँ पे होता था उस जमाने में यही तरीका था, वहां पे बन जाता थे, काफिले रुकते थे और कुछ लोग वहां पे आबाद हो जाते थे। अब जब बादशाह को, उस वक्त का जो बादशाह था, आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चला कि यहाँ पे एक इलाका है जहाँ पे इसकी बड़ी शोहरत भी होगी कि बड़ा नेक है, बड़ा इबादत गुजार है। तो बादशाह ने इसको पैगाम भेजा कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, तो तुम मुझे मिलने आओ। अब इसने बहाना कर दिया कि मैं अभी कुछ मसरूफ हूं तो मैं अभी नहीं आ सकता हूं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा बंदा है कि इसको पैगाम दिया कि बादशाह ने मिलना, ये नहीं मिलने आया। तो उनको और तजस्सुस हुआ। उसने अपने दरबारियों से कहा कि एक छोटा काफिला तैयार करो, मैं खुद उसको मिलने जाना है। तो अब बादशाह अपने छोटे से काफिले के साथ जा रहा है। जैसे ही उस इलाके के पास आता है ना, तो अल्लाह के हुक्म से उसकी जान कब्ज हो जाती है, मतलब फौत हो जाता है। अब जैसे वो फौत होता है तो जो उसके साथ लोग थे ना, उनको क्योंकि ये पता था, उन्होंने नसू के बारे में बहुत सुना भी हुआ था कि बहुत नेक है, और उनको ये पता था कि बादशाह बड़ी अकीदत से उसको मिलने जा रहा है, तो उन्होंने नसू को बादशाह की कुर्सी पर बैठा दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ये जैसे क्योंकि ये नेक था, ईमानदार थे, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना शुरू किया। बादशाह की जो बेटी थी उसको इसके जो भी ये काम कर रहे थे उससे मोहब्बत हो गई, उसने उससे शादी भी कर ली। अब बादशाह की बेटी की उससे शादी भी हो गई। अब एक दरबार में एक दिन एक आदमी आया और आके उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी एक गाय थी जो बहुत साल पहले मेरे से गुम हो गई, और मैंने उसको बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली और मेरे हालात बड़े खराब है, आप मेरी मदद करें। अब ये नफ्सू को पता था कि उसके गाय का तो उसके पास थी ना, जो आई थी, गुमी थी।
उसने कहा कि तुम वो जो गाय का जिक्र कर रहे हो वो तो मेरे पास है तुम्हारी गाय। तो उसने कहा वो अच्छा। तो उन्होंने फिर रसूल ने उनको सारी कहानी बताई। तो उसको कहा कि जो भी मेरे पास है कि जो कुछ आज मैं हूं वो उस गाय की वजह से, कि उससे जो मेरी इनकम हुई, जो मुझे पैसे मिले, मैंने उससे जो काम किया, नेकियां की, उस सारों में तुम्हारा भी हिस्सा आधा। तो हुक्म ये दिया कि जितनी मेरी जायदाद है ना उसमें से आधा हिस्सा इस गाय वाले को दे दो। जैसे उसने ये कहा तो उसको पता है उस गाय वाले ने क्या कहा कि ए नसूह, जान लो कि ना तो मैं इंसान हूं और ना ही ये गाय इंसान थी। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी तौबा की वजह से तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजी थी कि वो देखना चाहता था कि तुम अपनी तौबा में कितने सच्चे हो। अल्लाह अकबर, ये तौबा होती है। हम तौबा क्या करते हैं, तस्वीर पकड़ी और पढ़ के बस वो तस्वीर के, कई दफा तो होता है सामने टीवी भी लगा होता है, पूरा ड्रामा भी देख रहे हैं कि मिस ना हो जाए, सफर कर करके वो पढ़ के तसल्ली करके बैठ के हम क्या करते हैं। आयत करीमा का खत्म क्या है, ये तौबा है ना। आयत करीमा का खत्म जो है इस्तगफार कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तू ही सब है, बेशक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूं। कहते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को। इतने लोगों को जमा करते हैं, अभी सूरह यूनुस पढ़ चुके हैं और फिर हम कहते हैं चलो जी चलो, यूं हम तस्बियां गुठलियां फेंकते 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 100 लाख दफा हमने पढ़ लिया, सही पढ़ा गलत पढ़ा पढ़ लिया, कम से कम पढ़ लिया। और उसके बाद अगली लम्हे जैसे वो खत्म होता है, दुआ खत्म होती है और उसके बाद हमारी क्या हालत होती है, तौबा किधर है हमारी। ये चीज समझने की बात है जो मैं आपको ये बता रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत की तौबा मैं आपको सुनाती हूँ। कि मैंने बहुत पहले सुनाई थी, क्योंकि बहुत से नए लोग भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी एक सबक हो जाता है कि एक औरत से, क्योंकि उस वक्त तक हुक्म आ चुका हुआ था, हद कायम हो चुकी हुई थी। कहते ना ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये तब तक है जब आप दीन में नहीं आते हैं, कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, किसी को जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब आप दीन में आ जाते हैं ना, फिर तो हदें लग जाती हैं, फिर नहीं है ये बात। हम इसको भी गलत तरह से कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखो खुद का ला इकराहा फिद्दीन, तो अब मेरी जो मर्जी मैं करूं, मुझे कोई ना कहे कुछ भी, क्योंकि जबरदस्ती कोई नहीं है। जब तक आप दीन में नहीं आते ना, ये आयत तब की है, आप उसको गौर से पढ़िएगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत थी, उससे क्या ज़ना हो गया। अब हद कायम होने का सारी शरीयत क्योंकि बन रही थी, नाफिज हो रही थी, मदीना का टाइम था, तो रसूलुल्लाह के पास आती है और आके, अब कोई गवाह नहीं है, किसी ने शिकायत भी नहीं लगाई, खुद ही से आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाती है, कहती है कि या रसूलुल्लाह मुझ पे हद कायम कर दे, संसार कर दे मुझे, क्योंकि मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने ज़ना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं, जैसे आप सामने नहीं देख रहे, यूं सामने बैठी थी, रसूलुल्लाह ने यूं साइड पे कर दिया। तो उसको ये लगा कि इन्होंने नहीं सुना, वो वहां से उठी और साइड पे जाके, क्योंकि और लोग भी जैसे बैठे होते हैं, तो साइड पे जाके फिर उसने वही क्वेश्चन किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह इस साइड पे कर लिया, जैसे नहीं सुना। अब देखिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत की इंतहा की, उनको पता था कि ये क्या मुझसे मांग रही है और क्या कह रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म इग्नोर बेसिकली कर रहे हैं। तो उसने जब तीसरी दफा जाके कहा तो फिर रसूलुल्लाह को सुनना पड़ा, क्योंकि सहाबी भी बैठे हुए थे और अल्लाह का हुक्म तो आ गया था, शरीयत को तो टाल नहीं सकते थे खुद से। अब जैसे उसने ये कहा तो उसने ये कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मतलब मेरे पेट में बच्चा है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अच्छा तुम्हारे अगर बच्चा है तो अभी तो तुम्हें कुछ सजा नहीं मिल सकती, तुम पे हद नहीं कायम हो सकती, तो जब बच्चा हो जाएगा तो तब तुम आना। अच्छा वो औरत चली जाती है, फिर आती है रसूलुल्लाह के पास, तो बच्चा गोद में उठाया हुआ, तो आके कहती है कि या रसूलुल्लाह आपने मुझे कहा था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे कहा था कि बच्चा हो जाएगा, तो अब ये बच्चा हो गया, मुझ पे हद कायम कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको देखा, फिर कहते ना बहाना थोड़ा सा कि उनका इतना बड़ा करने का दिल नहीं था। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये बच्चा भी तो तुम्हारा दूध पीता है, तो अभी नहीं कर सकते। तो फिर वो वापस आती है, फिर जब वापस आती है बच्चा 2.5 साल का हो जाता है, हाथ में उसने रोटी का टुकड़ा पकड़ाया हुआ, तो आके कहती है या रसूलुल्लाह ये देखिए अब तो ये रोटी खुद खाना शुरू हो गया है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कहती हूँ उनकी मोहब्बत की इंतहा देखें कि जो लोग बैठे हुए थे ना, क्योंकि फैसले वहां तो अदालतें वही थी ना, फैसले उधर ही होते थे, मस्जिद में होते थे। आजकल की अदालतों का हाल देखें जरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और कहा कि तुम में से कोई ये कह सकता है कि ये जो औरत है ये कहीं पागल मजनून तो नहीं, सॉरी ये मैं इसको हमेशा उल्टा पहनती हूँ, आज गलती से जल्दी से पहना वो सीधा ही आ गया। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना चमक चमक उसमें नजर आ रही होती है। खैर एनीवे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
साहबा से पूछा कि ये औरत कोई पागल तो नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको ये था कि अगर कोई ये कह देता है ना कि हाँ ये तो कोई पागल सी औरत है, तो उसके ऊपर वो हद नहीं लगती ना, पागल के ऊपर वो हद नहीं लग सकती थी। तो साहबा ने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल औरत है, ये ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको पागल कहा जाए। तो फिर रसूल अल्लाह को हुक्म देना पड़ा। तो कहते कि जब वो एक सहाबी थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकला, वो पास से गुजरे ना, तो उसके खून का छींटा उनके कपड़ों के ऊपर गिरा। तो उन्होंने हकारत से ये कहा कि एक गलत फहाशा औरत थी जिसका गंदा खून मेरे कपड़ों पे गिरा और मतलब खराब हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी उनका नाम था सहाबी का, कि तुमने कैसी बात कह दी, इसकी तौबा आज तक जमीन और आसमान के दरमियान में किसी ने ऐसी तौबा, इंसान और जिन्नात में से किसी ने ऐसी तौबा नहीं की होगी जो इस औरत की तौबा, और अल्लाह ने कैसे इसको कबूल किया। तो ये समझने की बात है, हम जब तौबा करते हैं तो हमारी तौबा और इन तौबा में क्या फर्क है, हमें किस तरह से तौबा करनी चाहिए। अब देखिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार के बारे में मैं एक और आपको हदीस सुनाती हूँ, इसलिए कि ये टॉपिक इतना प्यारा टॉपिक था कि मुझे ये लग रहा था कि ये इंसाफ नहीं होगा अगर मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि हमारी जिंदगी बदलने का एक ये टॉपिक है कि हमारा जन्नत तो दोज़ख का मामला है, हमारा पूरा एक एक अमल किस में ढलेगा उसका मामला है ना। तो इसलिए मैं इस पे टाइम भी इतना ले रही हूँ कि एक दफा हसन बसरी थे, बैठे हुए थे, तो उनके साथ साहबा भी बैठे हुए थे। तो एक आदमी आया, आके कहा कि मेरे बहुत हालात खराब है, मेरे खेत जो है वो खराब हो रहे हैं, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी मतलब मसला किसका था कि वो क्या कहते हैं, रिस्क का मसला था कि मेरे पास रिस्क की तंगी होनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम यूं करो, तुम इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो। अच्छा वो चला गया, थोड़ी देर के बाद एक और आता है बंदा, उसने कहा जी मुझे कोई आप ऐसी चीज बताएं क्योंकि मेरे पास औलाद के लिए कि मैं क्या पढ़ूं। तो उन्होंने फिर वही कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। उसके बाद एक और आता है, वो आके एक और अपना मसला बताता है कि मेरी कुछ सेहत आजकल इतनी खराब है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो उन्होंने फिर वही कहा। तो साबिर के साथ उन्होंने कहा कि ये जो भी बंदा आ रहा है आप उसको एक ही बताते जाते हैं कि आप इस्तिग़फ़ार करो, तो ये आप मतलब क्यों आप ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने पता है कौन सी आयत पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया। और उन्होंने कौन सी आयत पढ़ी थी, सूरत नूह की आयत है, ये मेरी भी बड़ी फेवरेट आयत है कि फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, इन्ना काना गफ़ारा, कि यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है। और वो बख्शने वाला है तो वो क्या करेगा, ये गौर करना इस बात पे, आप लोगों ने एक एक आयत को अपने अंडरलाइन किया करें। युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा, कि वो तुम पे आसमान से बरसता हुआ, खूब बरसता हुआ तुम पे छोड़ेगा, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से रहमतों की बारिश तुम्हारे ऊपर कर देगा जब तुम इस्तिग़फ़ार कर लोगे, जब तुम तौबा कर लोगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरह से इस दुनिया में, हमें अक्सर होता है ना कि अच्छा ये नेकी का काम करो, आखिरत में जाके हमें चला, ऑफ कोर्स आखिरत में जिसकी दुनिया में मिल गई आखिरत में तो मिलेगी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसको दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमतों की बारिशें कर देगा। व युमदिदकुम बि अमवाली, और वो तुम्हारी बेपनाह तुम्हारी मदद करेगा अम्बाली अम्बाल से, वह बनीना, और तुम्हारे औलाद से, बेटों से, मतलब तुम्हें औलाद अता करेगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, और तुमको बागात अता कर देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें नहरें अता कर देगा। देखिए वो बागात, आप जरा सोचिए, जिस बाग के अंदर नहर नेचुरल नहर भी बह रही होती है ना, वो बहुत कीमती बाग होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना सिर्फ बाग दूंगा, ना सिर्फ बागात दूंगा, बल्कि उसके अंदर ऐसे बागात जिसमें नहरें बह रही होंगी वो दूंगा। क्यों दूंगा, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से रुजू कर लोगे, वापस माफी मांग लोगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ करे। आप ये वहां पे ये माफी का आप ये सोचें कि वो जो नसूह था उसके गुनाह का अंदाजा आप लगाएं कि किस जात के गुनाह थे, कि हम जैसे लोग सिर्फ सुन के भी कहते अल्लाह अकबर, इसकी तो माफी कोई नहीं होनी, एक सेकंड में ऐसे कह देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कैसे उसकी मदद की, कैसे उसकी तौबा कबूल की, क्योंकि उसकी नीयत थी उस वक्त, उसने तौबा करके दिखाई कि मैं तौबा कर रहा हूं, अब मैं इसके ऊपर जमा हूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जमने वाला बना दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता कर दे कि हम तौबा करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिएगा तौबा करके अगले लम्हे फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम ही नहीं मिला, तौबा सच्चे दिल से तौबा कर ली और जान निकल गई, तब भी जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि तौबा अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर लेते हैं। एक नमाज भी नहीं अभी पढ़ी, टाइम ही नहीं आया ना नमाज का,
तौबा कर ली, इसलिए कहते हैं देर नहीं करनी चाहिए, फौरन जिस वक्त एहसास हो आप तौबा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक सैयदुल इस्तिगफार आप लोगों में से अक्सर को आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सुबह शाम अपनी दुआओं में इसको शामिल कर लें कि, और इसका तर्जुमा मैं थोड़ा सा आपके साथ रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको और मोहब्बत आए, जिन लोगों को नहीं पता कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो सुबह के टाइम सैयदुल इस्तिगफार पढ़ लेते हैं ना, पढ़ना मीन्स वही कि मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से और इस पे अमल कर लेते हैं ना, अगर उसकी मौत वाक़या हो जाती है उस रात से पहले तो वो जन्नत में चला जाएगा। और जिसने रात को पढ़ी और सुबह उठने से पहले उसकी मौत, अक्सर लोग होते हैं ना नींद में फौत हो जाते हैं, तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। और आप इतराफ इसमें देखें कि क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए अल्लाह तू, अंता रब्बी तू ही मेरा रब है, मालिक है, खालिक है, तू ही मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी, नहीं है कोई भी माबूद अल्लाह, मैं इस बात का इतराफ करती हूँ तूने ही मुझे पैदा किया, व अना आबुदू का, और मैं अल्लाह तेरी बंदी हूँ, तू मेरा मालिक है, मैं तेरी गुलाम हूँ अल्लाह, मैं इतराफ करती हूँ इस बात की, व अना अला अहदी का व वादी का मस्ततातू, ए अल्लाह मैं जो तेरे से वादा किया है, जो तेरे से अहद किया ना, मैं अपनी पूरी इस्तिताअत के मुताबिक उसके ऊपर कायम हूँ। क्या वादा किया था? वादा लफ्ज़ याद है ना, जो हमारी तमाम रूहों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा। और या पाक परवरदिगार मेरा अहद जो है ना, जो आपने मुझे कहा था कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, या पाक परवरदिगार मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तामुरूना बिल मारूफ भी कर रही हूँ और तनहौना अनिल मुनकर भी कर रही हूँ, या अल्लाह मुझे इस पे इस्तिकामत अता करना। ये दुआ मांगते हैं। अब फिर आगे क्या हम कहते हैं, आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, और मैं अल्लाह तेरी पनाह में आती हूँ, मिन शर्रि मा सनातु, उस शर से, उस गुनाह से जो मेरे से इर्तिकाब हो गए, जो मेरे से हुए गुनाह, अल्लाह मैं उसके शर से, क्योंकि जैसे नेकियों का बदला मिलता है ना दुनिया में भी मिलता है, इसी तरह से गुनाहों का असर भी दुनिया में मिलता है। तो हम अल्लाह से इतराफ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं इतराफ करती हूँ आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, कि जो गुनाह मैंने किए हैं ना, उसका मैं जो इर्तिकाब हुए उससे मैं तेरी पनाह में आती हूँ। अल्लाहु अकबर, अबू लका, और मैं इकरार करती हूँ तेरे से बिनिअमती का अलैया, अल्लाह तूने जितनी नेमतें मुझ पर निछावर की हैं जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ, या पाक परवरदिगार मैं उसका इतराफ करती हूँ, मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ या पाक परवरदिगार। व अबू बिज़ंबी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं इस बात का भी इतराफ करती हूँ जो मुझसे गुनाह हो गए, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना, फगफिर ली, मुझे माफ कर दे, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, कि नहीं है कोई माफ करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला सिवाय तेरी जात की। अल्लाह को देखिए कितनी प्यारी तौबा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्फाज भी हमें दे दिए कि तुम्हें अगर मुश्किल है ना तो ये लफ्ज हैं, इनको देखिए, अगर हमें अरबी नहीं आती ना तो एक दफा इसका तर्जुमा पढ़ लें और फिर अपने लफ्जों में बयान कर दें। फिर जब हम अपने लफ्जों में बयान करते हैं ना तो दिल की जो हालत होती है ना वो बड़ी प्यारी हालत होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रबसुम्मा तुबू अलैहि, फिर उसकी तरफ तौबा करो, युमत्तिकुम मतान हसना, तो वो तुम्हें फायदा देगा, मतान हसना अच्छा फायदा, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक, मतलब इस दुनिया में, मुकर्रर वक्त तो दुनिया में है ना, कि दुनिया में रहते हुए जब तक तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आता, एक मुकर्रर वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इस दुनिया में भी उसके फायदे देगा। व युती कुल्ला ज़ी फज़लिन, और वो देगा हर साहिब फजल को, फज़लहू अपना फजल, व इन तवल्लौ, और अगर तुम मुंह फेर लो, फ़इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, तो बेशक मैं तो डरता हूं इस बात से कि बड़े दिन का अजाब जो तुम पर होगा। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया यूती कुल्ला ज़ी फज़लिन, तो अल्लाह का फजल क्या है कि हर ज़ी फजल को अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए हम एक नेकी करते हैं ना तो अल्लाह का फजल है कि वो 10-10 गुना हमें सवाब देते हैं, और अल्लाह चाहे तो 70,000 गुना बढ़ा दे, है ना। और अगर हम यहाँ पे दुनिया में नेकी करते हैं, अल्लाह का फजल क्या है कि हमें इंशाल्लाह जन्नतों में जगह मिलेगी। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इलल्लाहि मर्जिउकुम, कि अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो हर चीज का मालिक है। अब देखिए क्योंकि टाइम इतना है ना, अच्छा 2 मिनट रह गए, मैं चाह रही थी कि आज इस पारा इंशाल्लाह हम लोग पारा खत्म कर लें इंशाल्लाह। अच्छा जी, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला रिमाइंड करा रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, फिर सारा हिसाब किताब मैं कर लूंगा, क्योंकि कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज का वो मालिक है। अला आगाह हो जो, खबरदार, इन्नहुम
बेशक वो यफ़्नूना सुदूरहुम दौरे करते हैं अपने सीनों को, लियस्तख्फू ताकि वो छुप सके मिन्हु उससे, अला खबरदार हीना यस्तख्शौना कि जिस वक्त वो ढांपते हैं थियाबहुम अपने कपड़ों से, यालमू वो जानता है मा युसिर्रूना जो वो छुपाते हैं, व मा युलिनून और जो वो जाहिर करते हैं, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर कि बेशक वो दिलों के हाल भी जानता है। अब देखिए अगर मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊं ना तो ऐसे मैं पूरा सारा आपको एक दिन में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन फायदा नहीं है ना कोई भी ऐसे। अच्छा जी, अब ये जो आया है ना आया नंबर 5, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का पता है क्या करते थे, और मुनाफिक अपने आप को जाहिर मुसलमान करते थे ना, जो मुनाफिक थे वो क्या होता है, आपने वो देखा क्लास में जब टीचर सबक सुना होता है तो जब हम क्लास में होते थे, जब सबक नहीं याद किया होता था तो थोड़ा सा नीचे हो जाते थे कि टीचर को नजर ना आए, या फिर यूं करके बैठ जाते थे कि शायद हम नजर ना आए। तो यही आप देखिए कलाम की खूबसूरती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जिस्म का जो तरीका है ना, मतलब वो भी जाहिर कर दिया कि क्या सीने दौरे करते हैं, जैसे ऐसे छुप जाते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हज का जमाना भी होता था ना, देखिए हर 13 साल मक्का में रहे थे, हर साल जाते थे, लोग नहीं सुनते थे, ऐसा नहीं था कि एक साल नहीं सुना अब मैंने कोई नहीं जाना छोड़ो पीछे, ये तो मेरी बात ही नहीं सुने, फिर हर साल एक खैमे के अंदर जाते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम देते थे उनको जाके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये जो लोग जो है ये अपने सीने दौरे करते हैं या फिर अपने ऊपर चादर डाल देते हैं, मतलब अपने कवर करके कि नजर ही ना आए, या जो भी चीज लिए उसको छुपा के जैसे गुजरते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लाह तो जानता है जो वो छुपाते हैं, जो वो नजवा था ना जो छुप छुप के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे होते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह को तो वही के जरिए पता लगा देते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो जानते हैं जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम जाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाते थे ना, जब वो कोई बात कहते थे तो फिर उसका उल्टी बात कह देते थे। जब एक दफा मैंने आपको सूरत अल-बकरा में आई थिंक आपको बताया था कि वो जब महफिल में बैठे होते थे तो क्या वर्ड था कि वो कहते थे चरवाहा, जिसका मतलब होता था, तो वो जानबूझ के कहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम वर्ड ही चेंज कर दो ताकि इनको ये कहना ही जो ये मजाक उड़ाते हैं ताकि वो इस बात को तुम बड़ी बात ना बनाओ। जैसे उसमें सबक क्या था, मुझे बड़ा प्यारी बात लगी कि वो मुशरिकीन मक्का जो थे या फिर यहूद अपने लोगों को भेजते थे या जो मुनाफिक थे वो जानबूझ के जो लफ्ज ट्विस्ट कर देते थे ना, बात को चेंज कर, ट्विस्ट करना जिसको कहते हैं, और उसी लफ्ज का मीनिंग जो था वो चरवाहा बन रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं फरमाया कि इनको ये कहो इनको ये कहो, जैसे अस्सलामु अलैकुम था तो वो जानबूझ के क्या कहते थे अस्सलाम अलैकुम ताकि तुम पर हलाकत हो। तो हजरत आयशा को बड़ा गुस्सा आया था, ये वाली भी बात मैंने आपको पहले बताई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया बात ही चेंज कर दो, दूसरा लफ्ज यूज कर लो ताकि लड़ाई ना करो, क्योंकि लड़ाई करने से या फिर ताने देने शुरू कर देते हैं बाज दफा लोग, तो उससे क्या नेगेटिव एनर्जी आती है। जो लोग दीन का काम कर रहे होते हैं ना उनको हिम्मत चाहिए होती है, उनको ताकत चाहिए होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी से मिलती है। तो जहां कहीं आपको लगे आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली वाले, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड कोई आपको अगर कोई ऐसा ताना दे रहा है ना तो यहाँ से गुजारने की कोशिश किया करे तो बहुत आसानी से गुजर जाता है, क्योंकि हमें अल्लाह की मदद लेनी है। जब भी कोई ऐसी बात है फौरन नाउजुबिल्लाह पढ़ के और ये याद रखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था लफ्ज चेंज कर दो, बात चेंज कर दो ताकि आप लोगों को नुकसान तकलीफ ना हो। तो खैर एनीवे ये बहुत प्यारी आज की क्लास थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे इससे भी प्यारी। ऑनेस्टली एक एक आया सूरत हूद वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना कि मुझे बूढ़ा कर दिया है, ऐसे ही अहकामात हैं। बस मैं कोशिश करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक अता करे कि मैं इनका कुछ ना कुछ अपनी वसअत के मुताबिक इनका हक अदा कर सकूं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों की भी वसअत के मुताबिक इसको समझ दे और इस पे अमल करने का मुझे भी और आपको भी तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको एक साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।